بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے جس میں ہم نے ٹیسٹ نمبر 17 چیک کرنا ہے، اور ہم آج کل آپ کو پتہ ہے لیسن نمبر 8 پڑھ رہے ہیں بک 2 کا، چائناز وے ٹو پروگریس۔ تو پہلے ٹیسٹ چیک کر لیں۔ لیٹ اسٹارٹ دین۔ نمبر 1، ملیٹنٹ لڑاکا جنگجو۔ ان آپشنز میں سے ڈیلٹا اور اگریسو، ایسیٹک راہبانہ، ترک دنیا کیے ہوئے جو شخص ہوتا ہے اس کو ایسیٹک کہتے ہیں۔ اس کا ہرمٹ، بیٹا اور ہرمٹ۔ پلیگڈ تنگ کرنا، مصیبت میں ڈالنا، ٹربلڈ بودرڈ، یہاں ٹارچرڈ بیٹا اور ٹارچرڈ۔ ولسٹوڈ مقابلہ کرنا، مزاحمت کرنا، ریزسٹڈ بیٹا اور ریزسٹڈ۔ ہیریٹیج ورثہ، وراثت۔ چارلی اور لیگیسی۔ آفٹر میتھ، چھٹے پہ آ جائیں۔ آفٹر میتھ الفا، کانسیکوینس، ریزلٹس وغیرہ کو، نتائج کو کہتے ہیں۔ نمبر 7، کنفرنٹ سامنا کرنا، فیس کرنا، الفا اور انکاؤنٹر۔ 8، انگما معمہ، چارلی اور پیراڈاکس۔ گریم خوفناک، ہاریبل، چارلی اور شاکنگ۔ انہیریٹنس ایک بار پھر وراثت کو، ورثے کو کہتے ہیں، بیٹا اور لیگیسی۔ 11 پہ گراس، سیریس، الفا اور سیریس۔ 12 ایکسپینشن پھیلاؤ کو، ڈیلٹا اور اسپریڈ۔ ایگزیمپلری 13 ایگزیمپلری مثالی، ڈیلٹا اور آئیڈیل۔ پرویسو چھا جانے والا، پرویڈ کرنا، غالب آ جانے والا، الفا اور ڈومیننٹ۔ سپلٹ بریک کو، ٹوٹنا، ٹکڑے ہونا، تقسیم ہونا، الفا اور بروکن۔ ہاں جی، لیسن کی طرف آ جائیں۔ اس کی ہم ریڈنگ کر رہے ہیں، ٹرانسلیشن پیج 30، بک 2 چائناز وے ٹو پروگریس، پیج 30۔ لاسٹ پیراگراف۔ پہلے آپ پڑھ رہے ہیں کہ چائنا کی ترقی کا راز کیا ہے، کہ انہوں نے ایک ایگزیمپلری سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اور وہ کیا کہ فرد اپنے لیے نہیں سب کے لیے کام کرتا ہے۔ انہوں نے کس طرح کے ماضی کے جو اثرات سے تھے ان سے جان چھڑائی، اور اکنامک اسپیکٹ میں سب سے اہم جو فیچر تھا وہ تھا ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی، عدم ارتکاز معیشت کا۔ اور اس کی تفصیل بہت بیان کی جا چکی کہ ان کی معیشت مرکوز نہیں ہے، جس کی آسان مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ مرکز سے آگے چیزیں نہیں پہنچتی بلکہ وہ لوکلی مینیج کی جاتی ہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ لوکل لوگوں کو مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جس کی میں نے مثال دی تھی کہ اگر مثلاً فیروزہ میں کپاس پیدا ہوتی ہے تو وہیں جننگ مل بھی لگ جائے گی، فیکٹری لگ جائے گی، اس میں وہاں کے مزدوروں کو روزگار ملے گا، پھر وہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری لگ جائے گی، پھر وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا، پھر کپڑا وہیں استعمال ہوگا، فائدہ نفع نقصان ان کا ہوا، اور جو زائد کپڑا بچ جائے گا وہ پھر آگے نیشنل پراپرٹی ہو جائے گا، اسٹیٹ کے پاس ہوگا، اور اس طرح سے مسائل نہیں پیدا ہوں گے۔ اس کی بڑی تفصیل آ چکی ہے۔ اب ہم لاسٹ پیرا پڑھنے لگے ہیں۔ تو دس برنگز us ٹو دا ہیومن سائڈ آف دا چائنیز ایکسپیریمنٹ۔ اب ہم آتے ہیں چینی تجربے کے، یہ جو انہوں نے ایگزیمپلری سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اس تجربے کے ہیومن سائڈ پر، انسانی پہلو کی طرف آتے ہیں۔ ان کریشن آف اے نیو ورلڈ، نئی دنیا کی تخلیق میں چین والوں نے ایک نئی دنیا تخلیق کی ہے۔ وہ نہ صرف مادی دنیا، معاشی دنیا، مالی دنیا، بلکہ انسان کو بھی بدل کے رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ اٹ از سمپلی اے میٹر آف پرووائڈنگ، سمپلی محض، اونلی، جسٹ، پرووائڈ مہیا کرنا، ثابت کرنا، دیٹ تھامس ہابس، جس کا صحیح تلفظ ٹامس ہوگا، آپ بہرحال تھامس پڑھ لیں، کہ تھامس ہابس واز رانگ وین ہی روٹ ان ہز لیویاتھن
that man's condition is a condition of war with everyone against everyone. तो स्टूडेंट्स ये थॉमस हॉब्स जो हुए हैं ये इंग्लिश फ़िलासफ़र हैं. इनका नज़रिया ये है कि मैन इज़ सेल्फिश बाय नेचर. इंसान फितरी तौर पर ख़ुद गर्ज़ है, जिसका नतीजा ये है कि वो लाजमी तौर पर अपने मफाद की खातिर दूसरों से लड़ेगा. तो ये फिटेस्ट टू सर्वाइव वाला जो नज़रिया है उसकी तरफ ये माइल हैं, बल्कि उसी के कायल हैं. तो थॉमस हॉब्स ने अपनी किताब लेवियाथान में ये लिखा था कि चूँकि इंसान खुद गर्ज़ है, दैट मैन्स कंडीशन इज़ अ कंडीशन ऑफ वार, कि इंसान की हालत क्या है, वो है हालत जंग. विद एवरी वन अगेंस्ट एवरी वन, हर शख्स हर दूसरे शख्स के साथ मुसलसल जंग में मुबतला है और ताकतवर जो है वो जीत जाता है. ये थॉमस हॉब्स ने कहा. लेकिन चाइनीज़ एक्सपेरिमेंट्स ने, जिसने कि नई दुनिया तख्लीक की है, उसने ये साबित किया है कि नहीं, थॉमस हॉब्स गलत था. यहाँ चीनी सिर्फ अपनी ज़ात के लिए काम नहीं कर रहे, वो बल्कि अपने मुआशरे के लिए, स्टेट के लिए, तमाम हम वतनों के लिए काम कर रहे हैं. तो उन्होंने ये गलत साबित करके रख दिया है. What is taking place today in the world's most populous country? दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मुल्क में यानी चाइना में आजकल जो हो रहा है, What is taking place, जो कुछ रूनमा हो रहा है. In the world's most populous country, दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मुल्क में, वो क्या है? Is therefore the education and re-education of man, वो है इंसान की तालीम और फिर से तालीम. इंसान को नए सिरे से तालीम दी जा रही है और एक नया इंसान पैदा किया जा रहा है. उस नए इंसान की क्या खसूसियात हैं वो अगली लाइनों में आ रही हैं. द हार्ट ऑफ द मैटर इज़, मामले की रूह क्या है, दिल क्या है, इज़ द नीड टू रूट आउट सेल्फिशनेस. रूट आउट, जड़ से उखाड़ फेंकना, इरेडिकेट, फिनिश, एंड अप. सेल्फिशनेस, खुद गर्जी. मामले की रूह ये है कि खुद गर्जी को जड़ से निकाल फेंका जाए. एंड ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस, और वजूद में लाए जाएं सेल्फलेस, बेलौस, बेगरज, डेडिकेटेड, वक्फ शुदा, डिवोटेड मैन, इंसान. खुद गर्जी को जड़ से निकाल फेंका जाए और ऐसे इंसान वजूद में लाए जाएं जो बेगरज हों और वो वक्फ शुदा हों, कुर्बानी कर सकते हों. whose happiness consists of serving their fellow men. अच्छा, ऐसे इंसान वजूद में लाए जाएं जिनकी खुशी का इन्हिसार इस बात पर नहीं होता कि वो अपनी ज़ात के लिए पैसे जमा कर लें, अपने ख़ानदान के लिए कर लें, बल्कि वो खुश कब होते हैं जब वो दूसरे इंसानों की खिदमत करते हैं. दोबारा पढ़ लें. whose happiness consists of मुश्तमिल होना, involve, serving their fellow men in the fullest sense of the human community. fullest sense पूरे मफहूम में, human in community, इंसानी मुआशरा. इन इंसानी मुआशरे के भरपूर मफहूम में इंसानों की खिदमत करके खुश होते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? फुलेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी, कि ये नहीं कि वो खिदमत करें तो अपने रिश्तेदारों की कर ली, दोस्तों की कर ली, अपने हम मसलक लोगों की कर ली, बल्कि हर तरह से बिला तमीज़, रंग, नस्ल, ज़ात पात, इससे अबाव होकर सोचते हैं. मदद करेंगे तो वो ईसाई की भी, यहूदी की भी, मुसलमान की भी, नॉन मुस्लिम की भी, दहरिए की भी यकसा तौर पे करेंगे. तो इस तरह से इंसानियत की खिदमत की जाए. ऐसे इंसान वजूद में लाए जाएं जो बेगर्ज हों, वक्फ हों और जिनकी खुशी का इंसार इंसानों की खिदमत करने में हो. इन ह्यूमनिज़म, एक ऐसी इंसानियत परस्ती में, एट द सर्विस ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर, जो इज्तमाई मफाद की खिदमत पे लगी हुई है. इंडिविजुअल वेलफेयर नहीं, पर्सनल वेलफेयर नहीं, बार बार जोर इसी पर दिया जा रहा है. कलेक्टिव वेलफेयर, इज्तमाई बहबूद के लिए काम करती हुई ह्यूमनिज़म में चाइना इज़ स्ट्राइविंग, चीन कोशिश कर रहा है.
striving, struggling, to conceive, to think of, zehn में लाना, to conceive modernization as part of a process of embellishment of the landscape. चीन के नज़दीक मॉडर्नाइजेशन का तस्वर कैसा है? कंसीव से कॉन्सेप्ट भी निकला है। तो चीन के नज़दीक मॉडर्नाइजेशन ये है एज ए पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कि वो ऐसे अमल का हिस्सा है ऑफ एम्बेलिशमेंट कि डेकोरेट किया जाए ऑफ द लैंडस्केप, धरती को, ज़मीन को, देहाती मनाजिर को, कि वो शहरों की तरफ नहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फैक्ट्रियाँ, कारखाने वजूद में लाए जाए, ये भी होगा। लेकिन उनके नज़दीक मॉडर्नाइजेशन ये है कि ज़मीन को सजाया, यानी देहातों को पुर रौनक बनाया जाए ताकि लोग देहातों की तरफ माइल हों। डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स कल्चरल लाइफ, एक पहलू तो ये था उनका कलेक्टिव वेलफेयर का, और दूसरा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स कल्चरल लाइफ, और इंसानों की सकाफ़ती ज़िंदगी की नशो नुमा तरक्की इस तौर हो कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, जिसमें सबका फ़ायदा हो, इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्लेसिंग, कि सिर्फ ये फ़ायदा हो कि प्लेसिंग द नीड्स ऑफ मैन, कि इंसानों की ज़रूरियात को रखा जाए बिफोर दोज ऑफ द मशीन, मशीन की ज़रूरियात से पहले। ये तो है ही है, चीन वाले मशीन को अहमियत नहीं दे रहे, इंसान को अहमियत दे रहे हैं कि मशीनों के फ़ायदे पर इंसानों के फ़ायदे को तरजीह दी जा रही है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इससे भी बढ़कर बात यह है कि वो ऑल मैनकाइंड के फ़ायदे के लिए सोच रहे होते हैं। बच्चों, मुश्किल पहलू गुजरता जा रहा है। हियर इज़, नेक्स्ट पैरा आ गया पेज 31 पर। हियर इज़ व्हाट द पीकिंग पीपल्स डेली हैज़ टू से कमेंटिंग ऑन माओज़ फेमस मैक्सिम। मैक्सिम कौल, फरमूदा, कौल ज़र्री। पीकिंग्स पीपल्स डेली, जो उनका सरकारी अखबार छपता है उसका नाम है पीपल्स डेली, जो कि उनके कैपिटल से, पीकिंग से छपता है। तो हैज़ टू से कमेंटिंग ऑन माओज़ फेमस मैक्सिम, तो माओ के मशहूर कौल पर तबसरा करते हुए पीपल्स डेली ने ये अल्फाज लिखे हैं। क्या उनका मफहूम क्या है? मैक्सिम क्या है? रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस, रिलाई भरोसा करो, ट्रस्ट अपनी क़ुव्वतों पर भरोसा करो। नेशनल मशीन्स एंड इक्विपमेंट आर नॉट एंटायरली इंडिजिनस, कौमी मशीनें जो चीन में इस्तेमाल हो रही हैं, एंड इक्विपमेंट सामान, इंडिजिनस नेटिव लोकल, वो सारे का सारा ज़रूरी नहीं कि लोकल हो, एंटायरली कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर। नेशनल मशीन्स एंड इक्विपमेंट आर नॉट एंटायरली इंडिजिनस, कौमी मशीनें और सामान मुकम्मल तौर पर देसी नहीं है, अपने वतन का नहीं है। सिंस दे पोजेस अ नंबर ऑफ फॉरेन फीचर्स, क्योंकि उनमें गैर मुल्की फ़ीचर्स भी हैं। फ़ीचर खद्दो खाल, एस्पेक्ट्स, उनके अंदर कुछ गैर मुल्की चीज़ें भी हैं। और बार बार मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि 1970s की ये बात है जब ये ऐसे लिखा गया। अब तो कुछ 40-50 साल ऊपर हो चुके, तो उस वक्त फॉरेन फीचर्स भी थे उनकी लोकल इंडिजिनस सामान में। दे मे रिप्लेस, दे कौन से हो गया? नेशनल मशीन्स एंड इक्विपमेंट। दे मे रिप्लेस फॉरेन मशीन्स, जो इनकी कौमी मशीनें हैं वो गैर मुल्की मशीनरी की जगह ले सकती हैं। बिकॉज दे आर सुपीरियर टू फॉरेन इक्विपमेंट, क्योंकि वो गैर मुल्की साजो सामान से बढ़िया हैं। दे डू नॉट रिक्वायर मनी, उनको अपने बनाने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। और एट एनी रेट वेरी लिटिल, और अगर चाहिए भी तो बाहर कीमत बहुत थोड़ा पैसा चाहिए। एंड आर केपेबल, और ये जो कौमी मशीनें हैं, कौमी साजो सामान है, आर केपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स, ये इस अहल हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकती हैं, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकती हैं। केपेबल अहलियत होना। इट टेक्स मच लेस टाइम टू यूज़ इंडिजिनस इक्विपमेंट, मकामी सामान, लोकल बना हुआ सामान इस्तेमाल करने में कम टाइम लगता है। तो स्टूडेंट्स ज़रा रोक के ये सोच लें
کہ ہم تو انحصار رکھتے ہیں کہ جی یہ جنریٹر امریکہ کا ہے فلاں، پھر جب وہ خراب ہو جائے تو اس کا مستری بھی مکینک بھی لاہور سے آتا ہے، وہ اپنے پیسے، یہ نہیں ہے۔ چین والوں کا زیادہ تر سامان لوکل ہے، اب کوئی خرابی ہو جائے تو جلدی سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، آنے جانے کا مسئلہ نہیں، اور پھر فوراً نیا بھی بنوایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ان کی خوبیاں، لوکل جو انڈیجنس اکوپمنٹ ہے اس کے پازیٹیو پوائنٹ بتائے جا رہے ہیں۔ It takes much less time to use indigenous equipment. مقامی سامان استعمال کرنے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے۔ which when not available، وہ سامان جب اگر وہ مہیا نہ ہو تو can be promptly prepared، promptly فوراً، on time، immediately، فوراً وہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ indigenous equipment can produce bigger، فاسٹر، بیٹر اینڈ چیپر ریزلٹس، مقامی سامان بڑے بڑے، تیز، بہتر اور سستے نتائج دے سکتا ہے۔ فائنلی، آخری بات یہ، اٹ کین اسٹیمولیٹ دا ریولوشنری اسپرٹ، اسٹیمولیٹ، موٹیویٹ، راؤز، تحریک دینا، ابھارنا، ریولوشنری اسپرٹ، انقلابی جذبہ، انقلابی روح آف دا میسز، عوام کا۔ جب آپ مقامی سامان استعمال کریں گے اپنے ملک کا بنا ہوا تو آپ میں وہ ایک اعتماد ہوگا، ایک فخر ہوگا کہ ہم اپنے ملک کو ترقی دے رہے ہیں، اپنے ملک کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور یہ چینیوں کو یہ فخر سب سے زیادہ حاصل ہے۔ دوبارہ پڑھ لیں سینٹینس۔ فائنلی، آخری بات یہ کہ اٹ کین اسٹیمولیٹ دا ریولوشنری اسپرٹ آف دا میسز، یہ عوام کی انقلابی روح کو، انقلابی جذبے کو تحریک دے سکتا ہے۔ اینڈ ود دس ریولوشنری اسپرٹ، اور اگر عوام میں یہ انقلابی جذبہ بیدار ہو جائے تو آل ڈیفیکلٹیز کین بی اوور کم، تمام مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اوور کم، غالب آ جانا۔ یہ حصہ ہو گیا جی انقلابی روح۔ اقبال کا شعر فوراً یاد آتا ہے کہ ایک انقلابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، تو جب یہ روح ہی بیدار ہوگی تو کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ اسٹوڈنٹس، اب ذرا آسان حصہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے میں وہ تیزی سے پڑھوں گا۔ تو دیکھیں، اگلی ہیڈنگ ہے پیج 31 پر، ڈے ان دا لائف آف اے 16-year-old، 16 سالہ اسٹوڈنٹ کی زندگی کا ایک دن کیسے بیتتا ہے۔ ہاؤ ڈو دا اسٹوڈنٹس لیو، طلبہ رہتے کیسے ہیں، اینڈ واٹ ڈو دے تھنک انڈیویجولی، اور انفرادی طور پر وہ سوچتے کیا ہیں۔ ڈسپائٹ ہیونگ ٹو یوز این انٹرپریٹر، ڈسپائٹ، ان اسپائٹ آف، کے باوجود، انٹرپریٹر ترجمان، اگرچہ ترجمان استعمال کرنا پڑا، آئی واز ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ، لیکن میں نے اس سوال کا جواب ڈھونڈ ہی لیا۔ رائٹر کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں چائنیز زبان نہیں سمجھتا تھا، مجھے ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑی، لیکن پھر بھی میں نے اس سوال کا جواب کہ ایک 16 سالہ اسٹوڈنٹ کیسے اپنا دن بتاتا ہے وہ ڈھونڈ ہی لیا۔ ہیئر از دا ریزلٹ آف مائی انٹرویو ود جے وین سیو، یہ ہے نتائج میرے انٹرویو کے ایک لڑکی کے ساتھ جس کا نام ہے جے وین سیو، اے 16-year-old گرل، جو 16 سالہ لڑکی ہے، who lives in the workers district of پینگپو ایٹ شنگھائی، جو شنگھائی کے شہر میں پینگپو کے مقام پر ورکرز ڈسٹرکٹ، مزدوروں کے ضلع میں، مزدوروں کے علاقے میں رہتی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ میرے انٹرویو کے جو نتائج ہیں وہ میں ابھی پیش کر رہا ہوں، وہ لکھے دے رہا ہوں۔ شی از اے پیپل ان کلاس 3 ایٹ دا جونیئر اسکول، وہ جونیئر اسکول میں کلاس 3 کی طالبہ ہے۔ شی ول شارٹلی بی ٹیکنگ ہر ڈپلوما، شارٹلی مستقبل میں، ان قریب، جلد ہی اسے اپنا ڈپلوما ملے گا، ڈگری ملنے والی ہے۔ ہاؤ ڈو یو اسپینڈ یور ڈے، میں نے اس سے پوچھا نا، یہ سوال ہے، تم اپنا دن کیسے گزارتی ہو؟ تو آگے سے جواب دیتی ہے، آئی گیٹ اپ ایٹ 6 o'clock in the morning، میں صبح 6 بجے اٹھتی ہوں۔ ڈو اے فیو چورز ان دا ہاؤس، چور چھوٹے چھوٹے کام، گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی ہوں۔ ہیو بریک فاسٹ،
फिर नाश्ता करती हूँ एंड गो टू स्कूल एट 8, 8 बजे स्कूल चली जाती हूँ। आई फिनिश एट 11 o'clock, 11 बजे फिर वहाँ स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करती हूँ। आई गो होम एंड हैव लंच, फिर घर जाती हूँ और दोपहर का खाना खाती हूँ। एट 1:30 आई एम बैक एट स्कूल अगेन, 1:30 बजे दोबारा स्कूल में आ जाती हूँ until 3 o'clock, और फिर 3 बजे तक वहीं रहती हूँ। देन आई गो बैक होम, फिर मैं दोबारा घर जाती हूँ एंड वर्क, और काम करती हूँ। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन होमवर्क एट होम, घर में जब होमवर्क करती हो तो उस पर कितना वक्त लगाती हो? वेल एक्चुअली आई डू माई होमवर्क एट स्कूल, हाँ तो हकीकत ये है, सच में, ट्रूली एक्चुअली आई डू माई होमवर्क एट स्कूल, कि मैं अपना होमवर्क भी स्कूल में ही कर लेती हूँ। एट होम आई गो थ्रू द लेसन्स फॉर अबाउट एन आवर, घर में आकर तकरीबन 1 घंटा तक गो थ्रू रीड स्टडी, मैं फिर अपने असबाक को दोहराती हूँ। फ्राम 4 o'clock ऑन, और 4 बजे से आगे, 4 बजे के बाद आई रिलैक्स, मैं ज़रा रेस्ट करती हूँ। रीडिंग द पेपर्स, अखबार पढ़ते हुए, लिसनिंग टू द रेडियो, या रेडियो सुनते हुए। व्हाट न्यूज़ आर यू इंटरेस्टेड इन, किस तरह की खबरों में तुम ज़्यादातर दिलचस्पी रखती हो? ऑल पॉलिटिकल न्यूज़ विच इलस्ट्रेट द नेशनल एंड इंटरनेशनल सिचुएशन, मुझे उन सब सियासी खबरों में दिलचस्पी है विच इलस्ट्रेट, जो वजाहत करते हों, एक्सप्लेन द नेशनल, कौमी, एंड इंटरनेशनल सिचुएशन, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल, कौमी और बैनुल-अक़वामी हालात पर रोशनी डालने वाली तमाम सियासी खबरों से मुझे दिलचस्पी है। व्हाट डू यू डू व्हेन यू मीट विद योर गर्ल फ्रेंड्स, जब तुम अपनी सहेलियों से मिलती हो तो क्या करती हो? जवाब मिलता है, आई ऑफन गो आउट विद द गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑफ माई एज, मैं अक्सर अपने हम उम्र लड़कों और लड़कियों के साथ बाहर जाती हूँ। वी डू सम स्पोर्ट्स, हम कुछ खेल खेलते हैं। एंड देन प्ले पिंग पोंग, और फिर टेबल टेनिस खेलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स पेज 31 पे, चाइनीज़ विमेन, चीनी औरतों की सूरत हाल क्या है? फ्राम अ वेस्टर्न एंगल, एंगल जाविया, पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मगरबी नुक्ता निगाह से देखेंगे तो देर इज़ अ लैक ऑफ फेमिनिनिटी इन द चाइनीज़ वुमेन, चीनी औरत में निस्वानियत की कमी है, वुमननेस की कमी है, फीमेलनेस की कमी है। नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कोई कॉस्मेटिक्स नहीं, कोई फेयर एंड लवली वगैरह, कोई भी पाउडर क्रीमें वगैरह नहीं है वहाँ। नो मेंशन ऑफ सेक्स ईदर इन फिल्म्स आर लिटरेचर, फिल्मों में या लिटरेचर में कहीं सेक्स का जिक्र नहीं है। इन द लैंड ऑफ ओपियम, वही जिसको कभी अफ्यून खाने वालों की सरजमीन कहा जाता था, आज वहाँ क्या है? तो इस अफ्यून की सरजमीन में ड्रग्स आर नॉन एग्जिस्टेंट्स, ड्रग्स मुनशियात, नारकोटिक्स, नॉन एग्जिस्टेंस, वजूद ही नहीं है उनका, नॉन एग्जिस्टेंट। तो अफ्यून की सरजमीन में मुनशियात का वजूद नहीं है। मोसेज, मोज़ेतों का कहना है दैट विमेन होल्ड अप हाफ द स्काई एंड विमेन फॉर देयर पार्ट आर डिटरमिन्ड टू कीप देयर हाफ रेज्ड एट द सेम हाइट एज दैट हेल्ड अप बाई मेन। मौ का कहना है कि औरतों ने आधा आसमान ऊपर उठा रखा है, और जहाँ तक औरतों का ताल्लुक़ है, अपने तौर पर आर डिटरमिन्ड, उन्होंने तहैया कर रखा है, दे हैव डिसाइडेड, दे आर रिजॉल्व्ड टू कीप देयर हाफ रेज्ड, कि अपने आधे आसमान को उठाए रखेंगी, एट द सेम हाइट, उतनी ही बुलंदी तक, एज दैट हेल्ड अप बाई मेन, जितनी बुलंदी पर मर्दों का उठाया हुआ आधा आसमान है। व्हेन द चाइनीज़ वुमेन लिस्ट्स द सोशल बेनिफिट्स, जब चीनी औरत लिस्ट गिनवाती है, पूरे आइटम गिनवाती है, किन के? द सोशल बेनिफिट्स, वो समाजी, वो मुआशरती मफाद, वो फ़ायदे, शी एंजॉयज़, जिनसे वो लुत्फ़ उठाती है। जब चीनी औरत उन तमाम समाजी सहूलियत का जिक्र करती है जो उसे हासिल हैं, डैश के बाद उनकी तफसील है, 8 आवर वर्किंग डे, 8 घंटे काम करना,
फिर फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, फ्री में हस्पताल में इलाज एंड मेडिकल केयर और तिब्बी सहूलियात वो भी फ्री। नर्सरी एंड इन्फेंट स्कूल्स, नर्सरी के और छोटे बच्चों के, इन्फेंट दूध पीते शीर खार बच्चों के स्कूल, ये सब फ्री। 56 पेड डेज बिफोर चाइल्ड बर्थ, बच्ची की पैदाइश पर 56 दिन छुट्टी मिलती है विदाउट चार्ज, फुल तनख्वाह मिलेगी और कोई खर्च भी नहीं आएगा। जब वो ये सब कुछ गिनवाती है तो शी ऑलवेज कंक्लूड्स बाई अफर्मिंग, तो हमेशा अपनी बात यूं ख़त्म करती है, कंक्लूड्स नतीजा निकालती है, फिनिशेस एंड्स, बाई अफर्म तस्दीक करते हुए, दैट इन द वेस्ट कि मगरब में भी विमेन हैव नॉट येट सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग ऑल दिस, कि मगरब की औरतें भी अभी ये सब सोशल बेनिफिट्स, ये तमाम सहूलतें हासिल करने में कामयाब नहीं हुई जो हमने चाइना वालों ने 22 ईयर्स में हासिल कर ली हैं। बड़े फ़ख्र से वो औरतें बताती हैं। हाउएवर, ताहम वी चाइनीज़ आर वर्किंग, हम चीनी कोशिश कर रहे हैं, सो दैट द विमेन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी इक्वली हैप्पी, ताकि दुनिया भर की औरतें भी इतनी खुश हो सकें, खुशहाल हो सकें कि जितनी हम हैं, एंड एन्जॉय द एडवांटेजेस वी हैव, और वो भी उन फ़ायदों से लुत्फ़ उठा सकें जो हमें हासिल हैं। दिस रेडिकल चेंज, रेडिकल बुनियादी, फंडामेंटल, रेवोल्यूशनरी, ये जो बुनियादी तब्दीली है इन द वुमेन्स कंडीशंस इन चाइना, चीन में औरतों के हालात में ये जो इनकलाबी तब्दीली आई है, हैज़ गिवन वुमेन अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, ऐसे औरतों को एक एतमाद का एहसास मिला है, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट इन देम सेल्फ कॉन्फिडेंस। हिदर टू, आज तक, अननोन, जो नामालूम था, टू देम, उनके लिए, तो औरतों के मुकाम में ये जो चेंज आई है, बुनियादी तब्दीली आई है, इससे औरतों को ऐसी खुद एतमादी मिली है जिसका आज तक उन्हें एहसास नहीं था, जिससे आज तक वो नाआशना और बेबहरा थीं। डिग्निटी, ऐसा वक़ार मिला है, एंड एन अनडाउटेड अवेयरनेस, और एक अनडाउटेड, बगैर शक व शुबा के, यकीनी, अवेयरनेस, एहसास, ऑफ कैरियंग आउट, कि वो अंजाम दे रहे हैं, एन इम्पॉर्टेंट रोल, अहम काम, किरदार, औरतों को ये एहसास हुआ है कि हम बड़ा अहम काम कौमी नशो नमा में, कौमी तरक्की में अंजाम दे रहे हैं, हमारा रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इससे उनको एक वक़ार मिला है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ लिया, आज का हिस्सा काफ़ी आसान था, तो आप अगला टेस्ट भी लेंगे और क्वेश्चन आंसर की भी तैयारी करेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, गुड लक।